Good afternoon. Hi friends, today we are going to study organic qualitative analysis and hence onward आगे से आपको क्या करना है, जो भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो सभी किस तरह के हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 टू एक्सपेरिमेंट नंबर 13 के ऑल आर टू आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक ड्रग और कंपाउंड बाय सिस्टमिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो आज के हम प्रैक्टिकल में सिर्फ क्या करने वाले हैं कि मेथडोलॉजी या फिर हम कौन सा रूट फॉलो करने वाले हैं, किस तरह से ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, वो सब स्टडी करेंगे। सो द एम और द टाइटल ऑफ द टुडेज एक्सपेरिमेंट इज टू आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक ड्रग और कंपाउंड बाय सिस्टमिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। So here, for performing the systemic qualitative analysis, you have to perform 6 types of test. The first one is preliminary test, second one is physical constant, or that is determination of either melting point or boiling point, that we have already learned. Third है elemental analysis, fourth one is group analysis, fifth process है literature for reference, and the sixth step is confirmative test. Okay, so first we are going to study about preliminary test and physical examination. Here you can see that the unknown sample is examined for state, color, odor, solubility, litmus test, etc. And these tests are carried out to get some idea about the compound. From this test you will not get any definite conclusion. ओके कि आप इस टेस्ट तक ये नहीं कह सकते कि आपका कंपाउंड फिनॉल है या फिर एसिड है, ये जस्ट एक क्या है आइडिया देती है आपको या फिर क्लू देता है। तो यहाँ पे आप ये टेबल में देख सकते हो, हियर दे हैव मेंशन द टेस्ट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। सो दिस फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टेट। So there are two states, first है solid state and second one is liquid state. आपको जो भी कंपाउंड दिया जाएगा, if it is solid in nature then what will be your observation? Solid. और inference में आप क्या लिखोगे? Compounds having high molecular weight, for example aromatic acid, carbohydrate, phenols, amino acid may be present. Why you are going to write down may be present? Because we are not confirmed. अगर आपका कंपाउंड लिक्विड है, इफ़ इट इज़ अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन? कंपाउंड्स हैविंग लोअर मॉलिक्यूलर वेट, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ईथर, ईस्टर्स मे बी प्रेजेंट। सेकेंड प्रिलिमिनरी टेस्ट इज रिगार्डिंग कलर. सो हियर दे हैव मेंशन द डिफरेंट कलर्स, colorless solid, liquid, colored solid. Colorless solid and liquid is nothing but, in case of the solid, colorless solid is nothing but white color you have to consider, and if it is white then you have to write down carbohydrate, aliphatic, higher carboxylic acid, amides etc. may be present. अगर वो लिक्विड है तो रिस्पेक्टिवली आपका इन्फरेंस चेंज हो जाएगा। तो उसमें आप क्या लिखोगे? अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, लोअर ईथर्स मे बी प्रेजेंट। फॉरगेट अबाउट द कलरलेस सॉलिड एंड लिक्विड. If your compound is colored solid, okay, or colored liquid, then these are the different observations, that is pale yellow, pink, deep colored, and accordingly you have to identify the color of your solid compound, and in respect of that you have to write down the reference for the same or inference for the same. For example, if your compound is having pink color, what will be your inference? Naphthals may be present. Same will be applicable for liquid. If your compound is colored liquid, उसमें भी अलग अलग कलर आएंगे, like reddish brown or yellow to orange. Accordingly your inference will change. For example, if your compound is reddish brown, what will be your inference? Amines may be present. Now next is regarding the odor. Odor is also comes under the preliminary test. They have given the different types of the odor, like sweet or pleasant, fishy, phenolic, fruity smell, deep sweet. They have mentioned here the so many types of the odors.
and accordingly the inference will get changed. For example, if your compound is having phenolic odor, what will be your inference? Phenols or naphthals may be present. Next है test, that is effect of heat. Next test is effect of heat. For this test, what you have to do? You have to take a small quantity of sample and heat it in a dry test tube. First gently and then strongly. And simultaneously you have to observe all these observation. कौन से observation है? Whether your compound is sharp melting, sublimes or gives suffocating odor, gives out water and charls with caramel odor, evolution of ammonia, charls and then swells, no melting but chars. So these are the observation which you have to observe simultaneously. क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे ही आप सॉलिड कंपाउंड लेते हो उसको हीट करते हो वो मेल्ट हो जाता है. ओके, सो मेल्ट होने के बाद आप सिर्फ इतना ही नहीं लिख सकते शार्प मेल्टिंग. सो ईच एंड एवरी टाइम योर इन्फरेंस विल बी प्योर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट. So simultaneously you have to observe whether any suffocating odor is there or whether there is any evolution of ammonia is there, whether that compound swells during heating, like that, and accordingly your inference will get changed. Next test है solubility. Okay, next test which we are going to perform is solubility. Here you have to take some few gram of solvent, or if it is liquid then take a liquid in a test tube and shake well. Warm if it is necessary. Why you have to warm? To solubilize that compound, and then you have to check it for solubility. If the compound is soluble in water, what you are going to, how you are going to perform the test? You have to take litmus paper. Solution is tested with litmus. You have to take blue litmus paper and red litmus paper. Okay, so if your compound is acidic in nature, then what happen? In case of acids, that blue litmus will turn red. अगर आपका blue litmus red convert होता है, what it indicates? that your compound is acidic in nature. एंड इन्फरेंस में क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अनहाइड्राइड, एसिड सॉल्ट, क्लोराइड, फिनॉल्स एक्सेट्रा मे बी प्रेजेंट. सेकेंड टेस्ट है एसिडिक के लिए ही. OS इज नथिंग बट ओरिजिनल सॉल्यूशन. ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस 10% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन. अगर आपका ऊपर का ऑब्जर्वेशन सही है तो क्या होगा? देयर विल बी अ इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ इफरवेसेंस. अगर इफरवेसेंस आते हैं तो क्या प्रेजेंट है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है. इफ देयर इज अ नो इफरवेसेंस और नो इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, योर कंपाउंड इज फिनॉल. सो फ्रॉम दिस टेस्ट यू विल बी एबल टू सेपरेट फिनॉल्स एंड एसिड, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है? एसिडिक है. बट एसिड्स आर स्ट्रांगली एसिडिक एंड whereas phenol is weakly acidic. Now if that your litmus paper doesn't change from blue to red, then your compound is non-acidic. तो नॉन एसिडिक में कौन से कंपाउंड से? अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा. तो नॉन एसिडिक जब आप कहते हो तो उसमें दो कैटेगरीज आती है. आइदर योर कंपाउंड में बी बेसिक और योर कंपाउंड में बी न्यूट्रल. ओके, सो दो हो गए इसके. सो एसिडिक का पॉइंट क्लोज होने के बाद आपके पास कंक्लूड क्या हुआ कि आपका कंपाउंड एक तो बेसिक हो सकता है या फिर आपका कंपाउंड न्यूट्रल हो सकता है. देन इफ़ योर कंपाउंड इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, अगर आपका कंपाउंड इनसोल्यूबल है वाटर में, सो व्हाट विल बी, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? डिसॉल्व इन 2 normal sodium hydroxide. In test tube you have to take your compound, add sodium hydroxide. If it get dissolved, then phenol, carboxylic acid etc. may be present. अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं डिज़ोल्व हो रहा है, डाइल्यूट HCl में हो रहा है, तो आपका कंपाउंड कौन से नेचर का है? अमाइन है. बेसिक कंपाउंड सच एज अमाइंस, बट सोल्यूबल इन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड.
अगर ये दोनों में नहीं हो रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड में हुआ तो आपका कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक नाइट्रोहाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स। एंड इनसोल्यूबल है कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड में तो हैलोजेनेटेड डेरिवेटिव, मीन्स उसमें हैलोजेंस रहेंगे या फिर हाइड्रोकार्बन आपका कंपाउंड का नेचर। नाउ नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट टेस्ट which you are going to perform is action of sodium hydroxide. What you have to do here, again take small amount of sample and mix it with water and add 10% sodium hydroxide solution and shake well. तो हॉट एंड कोल्ड NaOH में क्या डिफरेंस है, सिर्फ जो आपकी पहली वाली टेस्ट ट्यूब है उसको ये आपको हीट करना है। अगर कोल्ड NaOH में आपको ये ऑब्जर्वेशन दिखते हैं लाइक इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया, तो आपका इन्फरेंस क्या आएगा, अमोनियम सॉल्ट इज प्रेजेंट। चेंज इन कलर है, मीन्स येलो टू ऑरेंज हो रहा है, कलरलेस टू डीप येलो या फिर गिव्स ब्लू ब्लैक कलर, देन all the compounds which are mentioned in the inference, that is orthonitrophenol, meta or paranitrophenol may be present. Action of hot NaOH, the same test tube you are going to heat. Okay, after heating, if you are observing all these observation, then the respective inference is there. For example, evolution of ammonia is there, then what will be your inference, amides, urea, thiourea, sulfonamides may be present. Like this you have to write down the observation. Next है action of sodium carbonate solution. ये आपके यहाँ पे इन एसिड्स की कन्फर्मेटरी टेस्ट भी हो जाती है। क्या करना है, सिंपली यू हैव टू टेक योर सैम्पल, add few drops of or few ml of sodium carbonate. If effervescence is there, acid is present. See here, if you are getting, means if you are obtaining here acidic nature, okay, if your compound is acidic here, then your test must be positive here also. Okay, अगर आप solubility में चेक कर रहे हो कि आपका कंपाउंड का नेचर एसिडिक है, तो आपके टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। दैट मीन्स इफरवेसेंस आने ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या करना है, कंपाउंड लेना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, और लिक्विड है तो लिक्विड लेना है एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है एंड वार्म करना है एंड ऑब्जर्व फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ब्लैकनिंग विथ इफरवेसेंस हो रहा है, ब्लैकनिंग विदाउट इफरवेसेंस हो रहा है, इफरवेसेंस है बट ब्लैकनिंग नहीं है, नो इफरवेसेंस नो ब्लैकनिंग, येलो टू ब्राउन, नो चेयर, तो अकॉर्डिंगली इन्फरेंस चेंज होगा। इफ योर कंपाउंड इज शोइंग येलो टू ब्राउन बट नो चेयरिंग, व्हाट विल बी द इन्फरेंस, ग्लूकोज मे बी प्रेजेंट। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हियर you have to perform this test in 3 medium: neutral medium, acidic medium and basic medium. न्यूट्रल मीडियम में रिजल्ट आता है तो आपको एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम की टेस्ट नहीं करनी। इफ़ यू आर डू नॉट obtain रिजल्ट इन न्यूट्रल मीडियम, देन यू परफॉर्म एसिडिक मीडियम टेस्ट एंड बेसिक मीडियम टेस्ट। सो न्यूट्रल मीडियम क्या करना है आपको, डिजॉल्व 0.2 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस in water and add few drops of the potassium permanganate. अगर decolorization होता है, unsaturated compound is present. This test is mainly performed to find out whether there is any unsaturation is present in your compound or not. Next है acidic medium, same test है, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, dilute sulfuric acid डालना है and जेंटली हीट करना है। उसके बाद यदि डीकलराइजेशन होता है तो ऑलिफेनिक कंपाउंड्स एंड ऑल आर मे बी प्रेजेंट। बेसिक मीडिया में क्या करना है, कंपाउंड सब्सटेंस इन 2 ml सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। यदि डीकलराइज हो रहा है तो क्या करना है, अल्डिहाइड फिनोलिक कंपाउंड्स मे बी प्रेजेंट। ओके, सो ये आपको अनसैचुरेशन एंड सैचुरेशन में से डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेस्ट यूज़फुल है। ओके, और एक ये बात यहाँ पे नोटिस करनी है, एवरीवन मस्ट बी नोइंग द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज़ मैजेंटा कलर। ओके,
तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैजेंटा कलर, वॉट एवर द कलर इज डेवलप इन योर टेस्ट ट्यूब, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ decolorization, not necessary that the solution becomes colorless. नेक्स्ट है एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर. यहाँ पे आपको क्या करना है, सैंपल लेना है, देन ऐड ब्रोमीन वाटर इनटू दैट सैंपल, एंड दिस टेस्ट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिफरेंशिएट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड. इफ यू ऑब्जर्व decolorization without precipitate, unsaturated compounds present. If decolorization with precipitate is there, phenols and aromatic amines may be present. Next है action of ferric chloride solution. Here treat the solution of sample or suspension with few drops of ferric chloride. Okay, so observe the color change. If green coloration changing through blue to violet, catechol is present. If blue or violet coloration is there, phenols and phenolic acid present. Red coloration, pyragalol is present. So again keep in mind that जो हमने solubility की टेस्ट देखी, उधर हमें नॉन एसिडिक अगर है कंपाउंड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो टेस्ट देखी हमने कि अगर हम कंपाउंड में NaOH सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं और उसमें यदि इवोल्यूशन नहीं होता है तो हमारा कंपाउंड फिनॉल है. यदि इफरवेसेंस आते हैं तो हमारा कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो यदि हमें उधर फिनॉल्स पॉजिटिव आ रहा है तो ये टेस्ट भी हमें पॉजिटिव आनी चाहिए. वन मोर थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट ओनली फिनॉलिक कंपाउंड्स विल शो द पॉजिटिव टेस्ट फॉर एक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड. इस अगर आपके कंपाउंड में फिनॉल प्रेजेंट है तो ही आपको ये टेस्ट पॉजिटिव आने वाली है, अदरवाइज ईच एंड एवरी टाइम नो चेंज विल बी देयर. नेक्स्ट टेस्ट है हीटिंग ऑन अ कॉपर गॉज. नेक्स्ट है हीटिंग ऑन अ कॉपर गॉज. उसमें क्या करना है, टेक अ स्मॉल कॉपर फॉइल एंड हीट इट इन अ फ्लेम एंड कीप फ्यू ग्राम ऑफ सैंपल ऑन दैट फॉइल एंड ऑब्जर्व द फ्लेम. सूदी फ्लेम इफ इट इज देयर, non-sooty flame, greenish flame, cheering and smelling of burnt sugar. You have to observe all these observations. Then if sooty flame is there, aromatic compounds, aliphatic compounds with more than 4 carbon atoms are present. सूदी मतलब कि ब्लैक कलर की फ्लेम, मीन्स जैसे कोई हम पेपर बर्न करते हैं तो उसका जैसे ब्लैक स्मोक निकलता है. इफ़ दैट टाइप of smoke is there, then we called it as a सूदी. अगर whitish flame है then we called it as a non सूदी flame. अगर नॉन सूदी है तो एलिफेटिक है. सी यहाँ पे हम एलिफेटिक कंपाउंड भी लर्न करने वाले हैं, एरोमेटिक भी. एग्जाम्पल क्या है एलिफेटिक कंपाउंड का, अगर मैंने आपको इथेनॉल दिया है तो इथेनॉल एलिफेटिक है. व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मूला फॉर इथेनॉल, CH3CH2OH. तो एलिफेटिक होने की वजह से यहाँ पे हमें ब्लैक कलर की फ्लेम नहीं मिलेगी. बट अगर मैं आपको यहाँ पे फिनॉल देती हूँ, ओके, तो हो सकता है, या फिर बेंजोइक एसिड देती हूँ तो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि ब्लैक कलर की फ्लेम आपको दिख सकती है. ओके, नेक्स्ट पार्ट कम्स दैट इज़ एलिमेंटल एनालिसिस. तो अभी तक जो हमने देखा, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द कलर, ओडर, ओके, अप टू द हीटिंग ऑन कॉपर गॉज, ये सभी क्या थे, प्रिलिमिनरी टेस्ट से. तो प्रिलिमिनरी टेस्ट से हमें क्या आइडिया आती है कि हमारा कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, हमारा कंपाउंड एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, एंड हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. ये 3 पॉइंट पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है प्रिलिमिनरी टेस्ट से. नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एलिमेंटल एनालिसिस करना है, बिकॉज वी आर कैरिंग आउट स्टडी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. तो यहाँ पे कोई नाइट्रोजन है क्या, सल्फर प्रेजेंट है क्या, ये सब हमें फाइंड आउट करना है. सो एलिमेंटल एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है, इट इज़ नथिंग बट फाइंडिंग आउट all the elements present in the organic compound by some color and precipitation reaction.
तो उसके लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, दैट इज़ लेसेजन टेस्ट। ओके, तो इस टेस्ट में हमें क्या करना है, यू विल हैव टू टेक द एलिमेंट इन द ऑर्गेनिक्स, द एलिमेंट इन द ऑर्गेनिक सैंपल्स आर कन्वर्टेड इनटू आयोनाइजेबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इस पर्पस क्या है, जो हमारा ऑर्गेनिक सैंपल है उसको हम आयोनाइजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इन दिस टेस्ट द एलिमेंटल नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन are converted by fusion with the sodium metal into their corresponding sodium compound, that means sodium cyanide, sodium sulfide, sodium halide respectively। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे कंपाउंड में अगर सल्फर, सोडियम या फिर हलाइड है तो उसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके उसका सॉल्ट बनाते हैं। सो हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस टेस्ट? For this, take a small piece of sodium freshly cut and dried by pressing between the filter paper in sodium fusion tube. Heat gently till sodium melt and vapors begins to rise. जब क्या करना है, सोडियम मेटल लेना है, उसको कट करके सोडियम फ्यूजन ट्यूब में फिल करना है और उसको हीट करना है। कब तक करना है? जब तक वो सोडियम मेल्ट नहीं होता। Then you have to add your sample. If it is solid, add. If it is liquid, with the help of the capillary you can add it. After the vigorous reaction is over, heat the tube carefully. उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से वो मिक्सचर हीट करना है till that sodium fusion tube becomes red hot. Once it has become red hot, then simultaneously you have to keep ready the setup for the evaporating dish covered with the wire gauze, and that evaporating dish should be filled with the water. Now when your sodium fusion tube is red hot, at that time you have to put that tube into the evaporating dish covered with the wire gauze and break that sodium fusion tube. Okay, crush the tube completely, heat the content and allow to boil and then filter. तो आपको उसके बाद क्या करना है, उसको बॉईल करना है और उसके बाद उसको फिल्टर करना है। 1 or 2 more fusions may be performed, मीन्स उसके बाद आप और टेस्ट ट्यूब मीन्स यूज़ कर सकते हो, 2 सोडियम फ्यूजन ट्यूब हम यूज़ कर सकते हैं। And afterward we have to perform this test for nitrogen, test for sulfur and halogen. So here is the first test, that is Prussian blue test, or it is also called as test for sodium. अभी इसमें क्या करना है, अभी आगे से जितने भी हम एलिमेंटल एनालिसिस करने वाले हैं उसके लिए हमें क्या करना है, ये एक्सट्रैक्ट जो बनाया हुआ है ना हमने अभी, वो यूज़ करना है। फिल्टर करने के बाद जो हमें सॉल्वेंट मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, दैट वी आर गोइंग टू यूज़। सो प्रूशियन ब्लू टेस्ट, टेक 1 ml of sodium fusion extract, add ferrous sulfate crystal, then add few drops of sodium hydroxide and boil the mixture, cool it and acidify with concentrated sulfuric acid. How you are going to check whether your compound is acidified or not? With the help of litmus paper. तो अगर आप H2SO4 डालते हो तो आपको चेक करना है लिटमस पेपर से। अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिफाई हो गया है तो क्या होने वाला है, ब्लू लिटमस विल गेट चेंज टू रेड। अगर ये सब प्रोसीजर फॉलो होने के बाद आपको ब्लू या फिर ग्रीन प्रेसिपिटेट या कलर आता है, देन व्हाट विल बी द कंक्लूजन, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। नहीं आता है, नाइट्रोजन इज एब्सेंट। दिस इज द अनदर टेस्ट फॉर द सेम नाइट्रोजन, बट एक टेस्ट परफॉर्म की तो भी सफिशिएंट है बिकॉज दोनों में एक ही कंक्लूजन मिलने वाला है। सो वी आर गोइंग टू स्किप दैट टेस्ट। नेक्स्ट है लेड एसीटेट टेस्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेना है, उसमें एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट डालना है। अगर ब्लैक कलर मिलता है सल्फर इज प्रेजेंट, अगर नहीं मिलता है सल्फर इज एब्सेंट। Second test, nitroprusside test, that is also for determination of sulfur. Third है Lebig's test. Okay,
इसमें क्या करना है, अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, देन एंड देन ओनली यू विल गेट पॉजिटिव टेस्ट फॉर और पॉजिटिव रिजल्ट फॉर दिस टेस्ट। अगर सोडियम एब्सेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, या फिर सोडियम प्रेजेंट है, सल्फर एब्सेंट है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द पॉजिटिव और ब्लड रेड कलरेशन फॉर दिस टेस्ट। ओके, अगर दोनों प्रेजेंट है देन एंड देन ओनली यू विल गेट ब्लड रेड कलरेशन, अदरवाइज यू विल गेट नो चेंज। नेक्स्ट है दिस टेस्ट फॉर हैलोजन। उसमें क्या करना है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बॉईल करना है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के साथ। इफ वाइट प्रेसिपिटेट इज देयर soluble in ammonium hydroxide and reappears when acidified with nitric acid, chlorine is present or chloro group is present। येलो कलर आता है, ब्रोमीन और आयोडीन प्रेजेंट। वाइट प्रेसिपिटेट आता है, क्लोरो प्रेजेंट विथ ब्रोमो और आयोडो और बोथ। अगर प्रेसिपिटेट ही नहीं आता है तो क्लोरीन एब्सेंट। सो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एलिमेंटल एनालिसिस, व्हाट आइडिया यू विल गेट, whether your compound is having nitrogen, sulfur and halogen। So पहले जो हमने देखा preliminary test, उसमें हमने क्या आइडिया मिली, whether our compound is acidic, basic or neutral, whether our compound is saturated or unsaturated। And now here what we are going to obtain information regarding whether our compound is having any nitrogen, sulfur or halogen। यह सब जो इधर दिए हुए हैं, जो मैं आपको शो कर रही हूँ, केमिकल रिएक्शंस हैं कि कैसे सोडियम कार्बन के साथ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होता है। ओके, और प्रूशियन ब्लू टेस्ट में कैसे क्या रिएक्शन होती है जब हम फेरस सल्फेट डालते हैं या फिर H2SO4 डालते हैं, सेम ये सब इधर रिएक्शन के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन में भी आस्क लाइक गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व in the test for sulfur, so at that time you have to write down this reaction। now next है, so अभी जो हमने elemental analysis देखा उसमें से हमें अभी आइडिया आने वाली है। हमें ऑलरेडी पता है that our compound is acidic, basic or phenolic। okay, and now what additional information we are getting by performing the elemental analysis is that whether our compound is having nitrogen, sulfur or any other halogen। if our compound doesn't show any test for nitrogen, sulfur मीन्स सल्फर की भी टेस्ट निगेटिव आ रही है, नाइट्रोजन की भी आ रही है, तो हमारे कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारा ग्रुप हो गया ग्रुप 1। भी ग्रुप 1 में दो टाइप्स है, एसिडिक, फिनोलिक एंड न्यूट्रल। तो जो हम सोलिबिलिटी टेस्ट जब हमने परफॉर्म की तो हमें पता चला है कि हमारा कंपाउंड एसिडिक है या फिनोलिक है या फिर न्यूट्रल है। तो अगर आपका कंपाउंड एसिडिक या फिनोलिक है तो हम डायरेक्टली पेज नंबर कहाँ पे जाने वाले हैं, पेज नंबर 2.13। अगर हमारा कंपाउंड न्यूट्रल है तो डायरेक्टली वी आर गोइंग फॉर पेज नंबर 2.22। अगर हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन की टेस्ट पॉजिटिव आती है तो हमारा ग्रुप कौन सा हुआ अभी, ग्रुप 2, CHO एंड नाइट्रोजन। तो पेज नंबर कौन सा है इधर, 2.43। अभी उसमें भी हमें ऑलरेडी पता है एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। अगर एसिडिक है वी आर डायरेक्टली गोइंग फॉर 2.43, अगर बेसिक है 2.47 एंड न्यूट्रल है तो पेज नंबर 2.56। अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों भी प्रेजेंट है देन इन दैट केस आवर ग्रुप इज ग्रुप 3, CHON एंड S, and we are going to follow the test which are given on page number 2.62। अगर हैलोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एब्सेंट है, सल्फर एब्सेंट है, एंड इफ हैलोजन इज प्रेजेंट देन आवर ग्रुप इज ग्रुप 4, that is CHO and halogen, and we are going to perform the test which are given on 2.66। okay, आफ्टरवर्ड भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर कंपाउंड डजेंट शो एनी टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड सल्फर। सो हमारा ग्रुप कौन सा हुआ, ग्रुप 1, दैट इज CHO, एसिडिक एंड फिनोलिक है। हम कंसिडर करते हैं
कि हमारे सोलिबिलिटी में हमें रिजल्ट मिला कि हमारा कंपाउंड एसिडिक है और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सल्फर प्रेजेंट नहीं है, तो ग्रुप 1। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि बताती हूँ कि कैसे हम चार्ट फॉलो करने वाले। सो यहाँ पे पेज नंबर 2.13 दिया है। सो आई एम गोइंग डायरेक्टली फॉर द पेज नंबर 2.13 ग्रुप 1। हियर यू कैन सी दैट CHO acidic, CHO acidic and what here, phenolic is there. Okay, now here test for carboxylic acids are mentioned. Test for carboxylic acids are mentioned over here. भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या टेस्ट परफॉर्म करने वाले हो। सैंपल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रॉन्ग इवोल्यूशन ऑफ CO2, COH group is present. Ester test. Okay, next is what? Ester test. Ester test में क्या है? टेक 1 second. So ईस्टर टेस्ट इज देयर। ईस्टर टेस्ट में क्या है? कंपाउंड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। फ्रैग्रेंट स्मेल आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इन दोनों में से एक टेस्ट की तो भी चलने वाला है बिकॉज बोथ आर शोइंग सेम रिजल्ट, दैट इज COH ग्रुप इज प्रेजेंट। नेक्स्ट टेस्ट है न्यूट्रल टेस्ट। भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें क्या करना है? टेक अ कंपाउंड। अभी यहाँ पे हमें जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ करने किया है कंपाउंड, वो यूज़ करना है। कंपाउंड प्लस वाटर प्लस फिनोप्थैलिन एंड add ammonia till it becomes alkaline. Okay, now what you have to do, boil that solution to remove the excess of ammonia. How you are going to check whether our ammonia is completely removed? Again with the help of litmus paper. यहाँ पे अभी हमें कौन सा litmus paper यूज़ करना है? Okay, red litmus paper. If red litmus paper turns blue, what it indicates? अमोनिया इज स्टिल इवॉल्विंग फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। जब हमारा रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, what will be our conclusion? That ammonia is completely removed. Then you have to add few drops of ferric chloride. बफ कलर्ड आता है, बेंजोइक एसिड और थैलिक एसिड प्रेजेंट। येलो कलर्ड आता है, सिनेमिक एसिड प्रेजेंट। वॉयलेट कलर आता है, सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आपका क्या हुआ, हमें आपको पता चला कि हमारा कंपाउंड कौन सा है। बेंजोइक एसिड है, थैलिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, एक्सेट्रा। वापस से न्यूट्रल टेस्ट भी हम सेम वही सॉल्यूशन यूज़ करना है, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड ऐड करना है। तो ऑब्जर्वेशन देखने हैं एंड अकॉर्डिंगली इन्फरेंस वी हैव टू राइट डाउन। अगर हमें सपोज ये मिलता है कि बेंजोइक एसिड और थैलिक एसिड इज प्रेजेंट, बफ कलर्ड मिल रहा है एंड आवर इन्फरेंस इज बेंजोइक एसिड और थैलिक एसिड प्रेजेंट। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू confirm whether it is benzoic or phthalic? With the help of melting point, physical constant, because it is a characteristic and distinguishing physical identity of the organic compound. benzoic acid का melting point अलग है, phthalic का अलग है, तो हमारा जो melting point आता है उसके accordingly हम decide करेंगे whether our compound is benzoic acid or phthalic acid. So again, what we have to do, we have to search for the literature. We have performed the melting point and what the reading we are obtaining, that is 120. so ये है literature. ऑलरेडी आपके बुक में ये सब दिया है, कंपाउंड्स उनका उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड इधर कन्फर्मेटरी टेस्ट। सो हमारा मेल्टिंग पॉइंट मानो 120 आया, तो हमें अभी यहाँ पे 120 सर्च करना है। हियर यू कैन सी दैट this benzoic acid is having 121 degree. Okay, so confirm हो गया कि हमारा कंपाउंड कौन सा है, benzoic acid. You can do this confirmatory test for benzoic acid. Like this you have to perform each and every experiment. From next practical we are going to start actual demonstration of your compound.
बिफोर दैट वन शुड गेट क्लियर विथ ऑल दिस कंसेप्ट. ओके, अगर आपका कंपाउंड ग्रुप सेकंड है तो डायरेक्टली आपका जो पेज नंबर दिया है, क्या पेज नंबर दिया है उधर, 1 सेकेंड. अगर आपका CHON है यू हैव टू डायरेक्टली गो फॉर पेज नंबर 2.43. आई विल शो यू 2.42 43. $25 आ गया. ओके, यहाँ पे 25 तक है. सो अगर 2 सेकेंड क्लास है तो आपको क्या करना है, 2.43 पे जाना है. सो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विथ दिस. इफ यू